جی امیر علیہ سنت عید کا موقع ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ جانور وغیرہ ذبح ہو رہے ہیں اور گھر پہ بھی ایک عید والا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو مہمانوں کا بھی آنا جانا ہے، تو مہمانوں کو بھی ویلکم کرنا ہے، جانور کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے. تو آج کے دن جو ہے کافی معاملات کی طرف نظر رہتی ہے. تو کون کون سے کام ہیں جس کی طرف جو ہے بندہ ایک اچھے انداز سے چلتا چلا ہے؟ نیتیں کیا کیا ہوں؟ آج کے دن گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، رشتہ دار بھی ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے، تو آج کے دن کی ابتدا نیتیں کن کن کاموں سے کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، عید کی نماز تو ہو گیا کہیں ہو رہی ہوگی، ابھی ہو سکتا ہے. عید کی نماز ادا کرنی ہے، جن پر واجب ہے وہ ضرور ادا کریں، سعادت حاصل کریں. عورتوں پر تو ہے نہیں عید کی نماز، اور مردوں پر شرائط کے ساتھ ہے. عید کی نماز ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے. پھر خوشی کا اظہار کرنا عید کے دن، یہ بھی سنت ہے، مستحب، صحیح. یہ بھی کرنا چاہیے. عید مبارک کہنا یہ بھی ایک ہمارے یہاں انداز ہے. یہ بھی کہہ لیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ پاک ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے. سبحان. اور ملیں تو مطلب سنت کی نیت سے ملیں تو مرحبا. عید کے وقت ہی ملاقات سنت ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے ایک مسلمان سے سلام کرنا، پھر ہاتھ ملانا، یہ سب سنتیں ہیں، صحیح. جبکہ ہو سنت کے مطابق. اب تو مطلب ایک ہاتھ سے لوگ ہاتھ ملاتے، فیشن چلا ہوا ہے. ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں ہے. سنت دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا، یہ خیال رکھیے گا. مصافحہ جس کو کہتے ہیں، یہ دو ہاتھ سے مصافحہ، یہ سنت ہے. ہمارے یہاں گلے ملنے کا رواج ہے عید کے دن، تو یہ بھی اچھا رواج ہے مسلمانوں میں، ایک چیز رائج ہے، شریعت میں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. اور علماء صلحاء یہ کرتے آ رہے ہیں، تو اس طرح گلے ملیں، کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. رشتہ دار سے ملیں تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا. صلہ رحمی کا ثواب جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا. صلہ رحمی مانے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ. رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں عید کے موقع پر کیا کیا چیزیں اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ہو سکتی ہیں کہ یہ طریقہ بھی اپنایا جائے، یہ بھی اچھے برتاؤ میں شامل ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمارے جو قربانیاں ہوتی ہیں تو رشتہ داروں کا حصہ جی 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا غریبوں کے لیے. تو رشتہ داروں کو دی جائے، قربانی کا گوشت دیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے بعد تو زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں، میری تھوڑی سی نہیں. تھوڑا بھی اگر بنتا ہے تو وہ دینا چاہیے صلہ رحمی کی نیت سے، تو اس میں بھی کار ثواب ہے. ہم مسلمان کو دیں گے اس میں بھی ثواب ہے، صلہ رحمی میں ثواب بڑھ جائے گا، دینا چاہیے. لیکن یہ رشتہ داروں کو اتنا اگر ممکن ہو نا تو اتنا عمدہ اور نمایاں اور اچھا دیں، تاکہ اگر یہ نیت کی جا سکتی ہے، ویسے اس میں آج کل کے دور میں، یا مطلب بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برا مناتے ہیں، یعنی کہ وہ برا نہ منائیں. یا بعض اوقات غیبت بھی اس میں کی جاتی ہے کہ ہم کو تو اتنا سا گوشت دیا، ہم نے تو اتنا سا دیا تھا، ہڈیاں ڈال دی، تو چھیچڑے ٹکا دیے، تو چربی بھری ہوئی ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی دے تو. یعنی ہم جب یعنی کسی بزرگ کی طرف سے نیاز کریں جی تو وہ ایک ادب کرتے ہیں نا کہ صاحب نیاز ہے، تبرک ہے. تو قربانی کے گوشت سے بڑا بھی کیا تبرک ہوگا؟ یہ بھی اللہ کی راہ میں ہم پیش کرتے ہیں. پھر مطلب یہ کہ بعض اوقات تو بارگاہ رسالت میں نظر کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ مطلب یہ کہ گوشت پاک کی طرف سے، دیگر بزرگوں کی طرف سے، جیسے ابھی ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک جانور قربان کیا. اب اگر یہ تبرک نہیں تو کیا تبرک پھر کس کو بولتے ہیں؟ تبرک ہی ہے نا کہ اللہ کے ایک نبی، اور وہ نبی جس کی سنت ہم ادا آج کر رہے ہیں، سنت ابراہیم، یہ تبرک در تبرک ہو گیا ہے، تو بہت بڑا تبرک ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا. یہ تبرک ہی تو ہے، برکت والا قربانی کا گوشت برکت کی نیت سے کھائیں گے، اللہ کرے گا اس کی برکتیں ملیں گی. بیمار شفا کی نیت سے کھائے تو اللہ کی رحمت سے وہ شفا پائے. تبرک ہے،
कुर्बानी का गोश्त, तो इसमें बिल्कुल बुराई, ऐब, ये हड्डी है तो ये गलता नहीं है, तो बुढ़ा है तो फुला है, तो चुनी है तो चुना है, नहीं, कुछ भी नहीं। तबर्रुक है, कुर्बानी का गोश्त है। मरहबा। मुख्तलिफ अंदाज जैसे पाए जाते हैं माशरे में, उसमें एक अंदाज ये भी है कि वो कुर्बानी जो कर रहा है उसको पहले से एक किस्म का वो बाउंड कर दिया जाता है कि वो दायरे में ले आया जाता है कि रान तो भाई हम लेंगे। ये अपनायत में भी होता है, तो ये अपनायत कितनी राहत देती है और कितना ये मशक्क़त में मुब्तला करती है। अल्लाह। वही दोनों सूरतें कि जानवर ज्यादा हैं और 2 रानें भी मांग ली, और ये यकीनी मालूमात है कि वो इसको बुरा नहीं लगेगा कि 3 रानें ले जा चुका है हमारी, ये जी जी अब ये मांग 2 रहा है, तो ये तो एक समझ में आ रही है मैचिंग। जी जी। और अगर ताल्लुकात ज्यादा नहीं है, आलिया जिसको अलेक सलेक बोलते हैं, ये है, और फिर ये कि रान मांग ली, तो ये खतरनाक है। वो मना कर देगा तो आपका दिल टूट जाएगा, तो देगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यार वो बच्चे के ससुराल में भेजना था, तो फुला पड़ोसी बहुत हम पर शफकत करते हैं, हमने आज तो नियत की थी उसको देंगे, या फुला सैयद साहब को नजर करना था और यार इसने कहा मांग ली, ये ना किया जाए। बल्कि ये भी सवाल है कि सवाल बाज़ सूरतों में मायूब होता है, बाज़ सूरतों में कुर्बानी गोश्त में मायूब नहीं होता। बेतकल्लुफी है और गोश्त मांग लिया और है आपस में, तो ये कोई हर्ज नहीं इसमें। या ये पता है कि ये बांट नहीं रहा है तो मुझे भी दे दो, तो वो एक अलग सूरत है, ये वो सवाल मायूब नहीं है। वरना ये कि अब लोग घर घर दरवाजे बजा रहे होते हैं, गोश्त मांग रहे होते हैं, सवाल नहीं है तो फिर क्या है कि गोश्त कुर्बानी का जिसने कुर्बानी की वही उसका मालिक है गोश्त का, दे ना दे उसकी मर्जी है। तो ये मांगना जो है ना, ये मुनासिब नहीं। फिर ये जो मांगत होते हैं ना, ये इकट्ठा कर रहे होते हैं, फिर ये इन होटलों में सप्लाई करना, तो मतलब बस वो होता है हिसाब किताब। बाकायदा शायद वो इस तरह के अंदाज भी बनाते हैं लोग, ग्रो भी इस तरह के बनाते हैं। सफेद पोश हो उनको ढूंढ के पहुंचाना चाहिए। क्या बात, सही बात है कि जो रोडों में फिर रहे, अब उनको बुला के बेचारा गरीब आदमी देना, हो सकता है आपसे ज्यादा गोश्त ये उसका कर चुका हो और आपको लगता हो ये खाली हाथ है। ये गोश्त आपने फरमाया कि पहुंचाने के हवाले से बड़ी प्यारी बात है कि पहुंचा देना, तो टाइमिंग भी इसमें अहम है कि अब जानवर ज़बह किया और ख़ुद तो यानी उनको कलेजी बनाई और खाना शुरू कर दिया। अब जो सफ़ेद पोशर पता है कि उसने कुर्बानी नहीं की, तो ये टाइमिंग कि हम उसको भी उस टाइम किसी तरह से पहुंचा दें जल्दी, या उसको कोई इंतज़ार करवाएं, क्या अंदाज़ अपनाना चाहिए? बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि इससे तो हम गुजरे ना, जोर था हमारा। मतलब अल्लाह अकबर। ईद के दिन कुर्बानी और गोश्त की फराहमी जो थी ना, मरहला था एक। अल्लाह। तो फिर कभी कहीं से आ जाता तो वो दोपहर के वक्त जैसे आता, तो अब समझ जाए बस। तो ये तो वो चीज़ है कि जो अपने तजर्बे में कितना इंतजार किया दुनिया में, मतलब गोश्त का ढेर लगा, अपने पास बोटी नहीं है। अल्लाह। तो उस वक्त दावत इस्लामी तो थी नहीं, नहीं तो नहीं कोई मानने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत वाले। खैर वो दिन भी गुजर गए। तो यूं मतलब गोश्त, अव्वल तो गोश्त फरोश के मसाइल हैं, भले 2 पैसे ज्यादा ले, बोलते हैं ना, जल्दी आ जाए और काटे बगैर, पीस बनाए बगैर वो जाए नहीं, ऐसी तरकीब हो जाए ना। और जो जो कटता जाए, ये पहले से लिस्ट बनी होगी, लिस्ट तो बनाते होंगे लोग, ये बनी हो और फटाफट तरकीब हो बांटने वालों की, कट भी रहा हो, बट भी रहा हो, और लोगों की हंडिया में वो डल भी रहा हो, तो फिर ज्यादा दिलजोई की आप कोशिश करेंगे, ज्यादा सवाब मिलेगा। बाकी अब आप पहुंचाएंगे 4 बजे 3 बजे, तो अब वो बेचारे दोपहर के वक्त तो दाल खा चुके, अब वो क्या करेंगे इसको। अब रात के लिए तो 2-4 जगह से और से भी आ ही जाएगा, बाजों को आ जाता है, बाज ऐसे भी होते हैं जिनको मिलता ही नहीं होगा बेचारों को, बिल्कुल मिलता भी बिल्कुल नहीं, इनको तो लेट मिला, दूसरों देर आए दुरुस्त आए नहीं, लेकिन वहां तो मिलता ही नहीं होगा। ऐसों का पत्ता चले ना, तो ऐसों को तो बोटी नहीं, पूरा बकरा दे देना चाहिए अल्लाह। अगर अल्लाह ने दिया है, तो ताकि इनके बच्चे भी बकरे से खेल कर खुश हो। बकरों के बदले हो जहां जहां मुमकिन हो उसको रकम दे दी जाए, वो भी चंद रोज पहले, ताकि ये जानवर खुद बच्चे ले जाकर बाप खरीद के लाए।
में बच्चे हमारे यहाँ शहरों में तो कराची शहर का तो माहौल ही है, जी। कुछ ज्यादा होते हैं, जी जी। खुद खरीद के लाए। अच्छा, ये कुर्बानी करते हुए भी जैसे सवाब का काम है, इसके अंदर भी कुछ गुनाहों की सूरतें जैसे बन जाती हैं। कुछ अंदाज ऐसे भी होते हैं कि कसाब जो ज़ाबे है, ज़बह करने वाला, अब वो आने में ताख़ीर हो गई या कुछ और मसला हो गया, तो अब उसके बारे में मनफी कमेंट्स तबसरे शुरू हो जाते हैं, ग़ीबत जिसे कहते हैं हम, कि किसी और का जानवर पकड़ लिया होगा, वो वहाँ कर रहा होगा और हमें रुला दिया और हमें यूँ धोखा दे दिया और हमें चला दिया, इस किस्म की बात। या वो आया था, अब उसने लिया कुछ नहीं, लेकिन होता है कि अच्छा वो फलां बोटी कैसे वो ले गया होगा कसाब। तो ये भी कोई अंदाज, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमाएं। ज़बान को बहरहाल ये कि लगाम देने ही में आफियत है। अगरचे गोश्त फरोश इस तरह अल्लाह अल्लाह मारूफ है इनका ये अंदाज, ताहम ये कि शख्स मुअय्यन के बारे में फ़र्द, इस फ़र्द ने ऐसा किया होगा, ये अगर उसने टाइम दिया था और फिर भी वो नहीं आया टाइम पर। अभी यहाँ भी बचत की बात सूरतें होती हैं जी जी। कि वादा करते वक्त नीयत थी पूरी के पहुंच जाएगा, कोई वजह से लेट हो गया, किसी और ने मजबूर किया और ये भी हिर्स में आ गया, नीयत उसकी तब्दील हुई, वो अब वादा खिलाफी का जुर्म तो इस पर नहीं आएगा। लेकिन ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए कि इस तनफीर की सूरत ग़ीबत का दरवाज़ा खुलेगा, तोहमत का दरवाज़ा खुलेगा, बदगुमानियाँ और ये नफ़रतें और यानी जो हो रहा है, उन लोगों को इतना इल्म होता नहीं है, ये बस वो बोली उसको कर देंगे पीछे से, सामने से तो शायद छुरी हाथ में होती है ना, हो सकता है कि रोब पड़ता हो, डरे। तो यही है कि मतलब कुर्बानी के दिन ही है जी जी। और अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुर्बान करे। अल्लाह जी बहुत चाहता है इसको बोले ना बोले, ये भी कुर्बानी है। और बोलने में गुनाह का इम्कान है, ना बोलने में क्या गुनाह है? ये तो आफियत तो इसी में कि ना बोलने में 9 गुण, मुहावरा ही है, 9 गुण माने 9 खूबियां, ना बोलने में 9 गुण, 9 गुण क्या? गुण 9% या वो ग्रेड 9 मिल जाते हैं यूं। दर्जे। 9 गुना मुराद है आपका? गुण 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 माने खूबी, अच्छा, खूबी, गुण, क्वालिटीज। ना बोलने में 9 गुण, ना बोलने में 9 खूबियां हैं, जी जी। बोलने में खतरे खतरे, यानी ऐसे मौके पर, जी जी जी। बाज मौके पर बोलने ही में खूबियां होती है, चुप रहने में खतरात होते हैं, लेकिन यहाँ ना बोलने में आफियत है। लेकिन ये इतना बोलते हैं और सुनने उसके सामने नहीं बोलते, लेकिन उनको भी पता होता होगा क्या क्या हो रहा होगा हमारे। लेकिन बाजों पर दौलत की हवस तो गालिब होती है, ये असर नहीं लेते हो, पैसे कमाओ, इन दिनों ये खूब पैसे, ये समझते हैं ये पैसों का सीजन है कमाने का। अभी आपने इरशाद फरमाया कि खुशी का इजहार भी हो, तो खुशी के इजहार के हवाले से भी मुख्तलिफ मसलन लोगों के जहन है, तो जब उनको ये पता चलता है खुशी का इजहार करते हैं या खुशी मनानी चाहिए, वो अपनी खुशियों को कुछ इस अंदाज से मनाते हैं कि वो गुनाहों में जा पड़ते हैं। तो ऐसों की इस्लाह कैसे हो कि वो अपनी खुशियों के इजहार के लिए भी गुनाहों भरे ज़राए इख्तियार करते हैं? हालांकि मजहबी एतबार से ये खुशी है, लेकिन वो इसके अंदर भी अपने कुछ ना कुछ गुनाहों भरे मामलात ले आते हैं, तो ऐसों का आप क्या इरशाद फरमाएंगे? तो अरे यौम तशक्कुर है हमारे लिए, और अल्लाह ने खुशी अता फरमाई, इसका शुक्रिया कि ईद होती, खुशी का दिन होता है, ये खुशी का इजहार भी सुन्नत है ईद के दिन। इसमें गुनाह की सूरतें तो बहुत होती हैं, बहुत कोई मतलब सैर तफरी गुनाह भरी जगहों पर जाकर, मुतलकन सैर तफरी गुनाह नहीं है, लेकिन गाने बज रहे हैं, मर्द औरत इकट्ठे हैं, फिर ये कि दावतें करते हैं कुर्बानी के, दावत भी रिश्तेदारों में या दोस्तों में की कार्य सवाब है, लेकिन गैर मर्द गैर औरतें ये इकट्ठे होते हैं दावत में, ये गुनाह का काम है। आपस में खूब बदनिगाहियाँ होना और
बेतकल्लुफियाँ और कहकों का जोर मर्द औरत का अजनबिया और अजनबी भले ना चचाजाद मामूजाद ये सब आपस में तो अजनबी है और बेपर्दगी इनमें होती है, ये गुनाह के काम है। गाने बाजे का शोर नहीं है। इस तरह की तो कई सूरतें करते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए।